last week, on the last Friday when we met, we discussed about just one word for the whole session of the 1 hour. Just one word we were discussing, dharma, because this is very, very important word for Hindus particularly. And because we are Hindu Samsuk Sangha, Hindu Sevika Samiti, at least we should understand what exactly we want to give the message to the rest of the Samaj. So the whole session we spent on the one word called dharma. And why we call it Hindu dharma? Dharma is universal. Dharma is dharma. For each human being on this planet, dharma is applicable, because we discussed dharma represents for the qualities, for the great values. So either the duty or the righteousness, all the great values. क्षमा धर्म है, दया धर्म है, दान धर्म है, कृपा धर्म है, मैत्री धर्म है. So then this the concept of dharma is applicable for each and every human being on this planet. It's not only for Hindus. Just we call it dharma, Hindu dharma. हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि शायद हमने भी नहीं बोला. हिंदू धर्म बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया. Because Hindus gave this great concept to the humanity, to the world. तो शायद लास्ट वीक को एग्जांपल मैंने दिया था कि like we say the Newton's law. So basically this is law of gravity, but because Newton was a rishi, a scientist who spent his whole life to brought this theory to the world, that's why with respect the whole world say it is Newton's law, or the law of the relativity we call it the Einstein's law or the Archimedes law or different law. In the same way, because the concept of the dharma Hindus brought to this planet, to this whole world, so with respect we call it Hindu dharma. Otherwise Hindu dharma, Manav dharma, Sanatan dharma, Vishwa dharma, they are synonyms. ये सब पर्यायवाची हैं. They are synonyms. There is no difference between, if someone say Bharatiya Sanskriti, if someone say Hindu Sanskriti, there is no difference at all. They are synonyms. Because of this media pressure, and if someone want to be some broad-mindedness, and they say rather than Hindu Sanskriti, I would like to say Bharatiya Sanskriti, fair enough. But basically they are same. There's no difference at all. जो भारतीय संस्कृति है मूलतः वो हिंदू संस्कृति ही है. We go ahead, and in that stanza when we sing विश्वधर्म विकासार्थम प्रभो संघटिता वयम शुभामाशिषम अस्मभ्यम देहि तत् परिपूर्तये. हे भगवान हमको आशीर्वाद दीजिए. For what? After explaining विश्वधर्म we sing, we asking आशीर्वाद for what? विश्वधर्म विकासार्थम. इस विश्व धर्म के विकास के लिए. ये जो धर्म नाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस दुनिया में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझें. Definitely this world will be a better place for not only for humans but for everyone to live. इसलिए हे ईश्वर, ये धर्म नाम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको as we say sometime in the shakha, the practice and promote, to promote this concept on the planet and to promote this dharma in the humans. मनुष्यों में धर्म का विकास और इस धर्म की अवधारणा का विश्व में विकास, इसके लिए हम आशीर्वाद मांग रहे हैं. So that we discussed last time on the stanza number 3. अभी आगे बढ़ना है प्रार्थना में. So our प्रार्थना is a typical Hindu prayer. कोई भी हिंदू, you and me, normally very unconsciously, subconsciously when we go to the mandir, what a Hindu does. जब एक हिंदू प्रार्थना करता है, क्या करते हैं? You imagine, जब आप मंदिर में जाते हैं, कोई भी सामान्य हिंदू व्यक्ति जाता है, क्या करते हैं? एंटर होते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके पहले खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं. अगर मंदिर में 5 or 6 different deities, we do pranam to all because we believe one Ishvara in many form. And then normally either we stand or we sit in the center, or maybe our Ishtadev. There we stand and then we start the conversation. So initially the pranam, then बाद में कुछ conversation शुरू होती है between the भक्त and the भगवान, and it is very silent conversation. Only भक्त knows and the भगवान knows. फिर चलता है कि अरे आजकल थोड़ा परिवार में प्रॉब्लम है, या थोड़ा ठीक करो, एग्जाम आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही बच्चों की, या जो भी बिजनेस, whatever. It happens. It's subconsciously, unconsciously, it happens.
बिकॉज वी टॉकिंग टू सम अल्टीमेट पावर हु गवर्न दिस होल यूनिवर्स। उनसे हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा और कुछ बहुत एक उच्च उच्च स्तर के लोग होंगे तो वो अगर जाकर के यही मांगेंगे, इस विश्व को शांति दो, इस विश्व में आनंद दो, बट देन कुछ मांगना, ये दैट इज नॉर्मली द पार्ट नंबर 2 ऑफ एनी हिंदू प्रेयर। एंड नंबर 3, एक हिंदू क्या करता है, फिर वो कहते हैं नंबर 3 में कि अगर ये मेरा काम हो गया ना तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, या मैं आपके 11 व्रत करूंगा, या ये मैं इतना दान पुण्य करूंगा। देन so normally this is typical 3 step of any Hindu prayer, and exactly somehow very interestingly in our prarthana as well we follow these 3 steps. So in the step 1, in the initial 3 stanzas we doing pranam to dharti ma and then Ishvara, and now start this कुछ मांगना, अभी वो शुरू होता है। एंड एट द एंड ऑफ द प्रार्थना जब भगवान कहते हैं कि ये तुम मांगते रहोगे कि तुम भी कुछ बाद में कुछ ऑफर करोगे, तो जैसे एक हिंदू बोलता है कि मैं व्रत करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हम भी कुछ बोलते हैं। सो व्हेन वी रीच देयर इन द लास्ट स्टैंजा देन वी विल नो कि व्हाट वी ऑफरिंग टू द ईश्वर। सो हियर नाउ स्टार्ट, हमको भगवान से कुछ चाहिए। अभी फ्रॉम द स्टैंजा नंबर 4 वो मांगना शुरू किया है। अभी हम कौन हैं? हिंदू स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एंड सेविकास, डूइंग प्रार्थना इन द फ्रंट ऑफ द भगवत ध्वज इन अवर शाखा। यस, तो एक स्वयंसेवक या सेविका क्या मांगेगा अगर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीज गो ऑन दैट हाइट, प्लीज गो ऑन दैट हाइट, कि अगर एक स्वयंसेवक एंड सेविका हु वर्किंग फॉर विश्व धर्म, फॉर द सेक ऑफ द विश्व धर्म, इफ दे आस्किंग समथिंग फ्रॉम परमात्मा, क्या मांगेंगे, क्या मांगना चाहिए? इन फॉर अ संसारी पुरुष, when you going to mandir in the front of the Bhagavan as an individual, as a sansari purush or mahila, that time obviously the sansar come in the mind. So then our family, हमारे family का problem या कुछ और दूसरी ऐसी बातें जब मन में आती हैं, but at the moment in the front of the Bhagavad Dvaj we not standing like a संसारी मनुष्य, यहाँ हम एक हिंदू स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और सेविका की तरह खड़े हैं। क्या मांगना है? That's a very different mindset. That's a very different mindset. And it reminds me the incident of Swami Vivekananda. So maybe आप लोगों ने कुछ ने, अगर वो इंसिडेंट सबको मालूम होगा, बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध है। Vivekananda was the son of a rich family, in a very rich family. पिताजी was a very senior lawyer. भाई बहन हैं सभी। Vivekananda, it was Narendranath. By that time he was not Vivekananda. Narendranath is the eldest son. And unfortunately पिताजी died on a very young age. और क्या गड़बड़ होता है संसार में कि उन्हीं के जो चाचा या ताऊ है, उन्हीं लोगों ने उनका पूरा प्रॉपर्टी मकान सब निकाल लिया। एंड दैट रिच फैमिली, जो अपने उस समय के चैरियटर और इस तरह की जो हाई क्लास जो सोसाइटी में जो लोग बैठते थे, दैट फैमिली केम ऑन द फुटपाथ। इट वाज द बिटर ट्रुथ ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइफ ऑफ द विवेकानंद। सड़क पर, जिसको कहते हैं ना, सड़क पर आ गया परिवार, ये हुआ है। एंड द मम with all the children went to her mom's house, mean नानी के घर, and they spent years and years in the house of the नानी, जहां नानी भी विडो है, माँ भी विडो है, और ये भाई बहन है 4, और उसमें नरेंद्रनाथ सबसे बड़ा है, he is hardly 20. Literally when you read the life of Vivekanand, ऐसे दिन आते हैं विवेकानंद की लाइफ में कि लिटरली आज घर में खाना बनाने को कुछ नहीं है, पानी पी करके सोना या कुछ भी ऐसा करके सोना। These days the family of Narendranath they have seen. और उस समय विवेकानंद घर का सबसे बड़ा लड़का है नरेंद्रनाथ। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो 2 पैसा कमाए और अपने घर में इन लोगों का पेट भरे। That was the responsibility of Narendranath, and he literally tried. दिन में कितनी जगह जाते थे अपना एप्लीकेशन लेकर के, नौकरी नहीं मिलती थी, there's no job. और नरेंद्रनाथ के जीवन में ऐसा आता है जब वो शाम को भटक करके आते थे और माँ पूछती थी कुछ खाया दिन में, तो ऐसा झूठ बोलते थे, मैंने मेरे फ्रेंड के यहाँ कुछ खा लिया है,
पूरे दिन का भूखा, रात को भूखा सोना, और अगले दिन फिर अपना हाथ में एप्लीकेशन लेकर के 4 ऑफिस में नौकरी मांगने जाना. These days Narendranath has seen. और ऐसे में रामकृष्ण परमहंस asking him to become a sannyasi. Wow. Can you imagine the dilemma of that young man? जहां एक तरफ परिवार को खाने को रोटी नहीं है, it is his responsibility to do the work. On the other hand, a Mahapurush like Ramakrishna Paramahansa asking him to go on the spiritual path. And Ramakrishna Paramahansa saying, you're not for this sansara, you born for some other cause. And one day, in that frustration, Vivekananda got angry. And he literally cried in the front of the Ramakrishna Paramahansa, और बोलते हैं कि आपको मालूम है मेरे घर में भूखे मरते हैं लोग. तो रामकृष्ण परमहंस on a very different height. रामकृष्ण उनको बोलते हैं कि अरे तो वो पास में काली का मंदिर है. जो लोग आप में से जो लोग दक्षिणेश्वर गए होंगे कोलकाता में, वो दिव्य भव्य मूर्ति है माँ काली की वहां. So you go and ask, she is the giver to the whole world, why she won't give to you? And that 20-year-old Narendranath, the young man, fighting with the hardship of the sansara, enter in that mandir, and the moment he see the Kali, he just forget why he is there. Or later in his books, Narendranath writes, वो कहते हैं उस समय मुझे ऐसा लगा, अरे ये सारे संसार को देने वाली है, इसको सब मालूम है किसको क्या चाहिए, मैं इससे क्या मांगूंगा, 2 रोटी? जो सारे संसार को सब कुछ देती है, उससे अगर मैं 2 रोटी मांगता हूं, मेरे से बड़ा भिखारी कौन होगा? And he couldn't ask for the money or for the roti. In that moment of that mesmerizing moment, Narendranath just asked, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो. 3 things he asked: ज्ञान, bhakti, vairagya. He came out. The moment he came out, he came back in the sansara. And that Ramakrishna Paramahansa, the old man, just smiling there, sitting in the corner. और उनको लगा कि अरे why I went inside? मैं गया था रोटी मांगने के लिए और मैं भूल गया. And then he again, literally I'm saying, fighting with the Ramakrishna Paramahansa. And he says, definitely this man knows some black magic. So that's why when I enter in the mandir, I forget what exactly I need. Or Ramakrishna Paramahansa, that day, the history says Ramakrishna Paramahansa sent him 3 times. Go again. Did you ask for a roti? नहीं मैं भूल गया. Go again. 3 बार विवेकानंद को, नरेंद्रनाथ को उन्होंने भेजा, जाओ मांगो. All the 3 times what he could ask, every time he asked for, ए माँ मुझे ज्ञान दो, तुम्हारी भक्ति दो और वैराग्य दो. That is the mindset of a sadhak. When a sadhak, when a swayamsevak or sevika asking something from Bhagavan for this work of dharma, हम क्या मांगेंगे? ये हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम कभी भी मांग लेंगे. That is not we going to ask them. तो अभी हम क्या मांग रहे हैं? इस काम को करने के लिए हमको कुछ दीजिए. ये धर्म का कार्य करने के लिए आप हमें कुछ दीजिए. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Even our experienced swamsevak and sevikas, we need to go deep down. Why these 5 qualities? And we are asking the 5 qualities now from Bhagavan, from Ishvara. Why out of this hundreds of human qualities, why we chose these 5 qualities? और परम पूजनीय गुरु जी से लेकर के जिन लोगों ने इस प्रार्थना की रचना की होगी, उन्होंने कितना विचार किया होगा कि हिंदू समाज को ये 5 गुणों की जरूरत है. Every Hindu need these 5 qualities, and exactly the similar 5 qualities we ask in the प्रार्थना of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. There is no difference at all, because Hindus are equal around the world. तो अभी हम ईश्वर से मांग रहे हैं. पहली चीज क्या मांगते हैं? अजेय आत्म सामर्थ्यम. अजेय आत्म सामर्थ्य, शक्ति दो, सामर्थ्य, हमको शक्ति दो. कैसी शक्ति दो? जो अजेय है. नो वन कैन विन दैट. जो इस दुनिया में अजेय हो, कोई उसको जीत ना सके, ऐसी शक्ति दो. पहली चीज हम मांग रहे हैं, हमें शक्ति दो.
क्योंकि इसी के कारण हमारी दुर्दशा हुई है, शक्ति न होने के कारण. The very first reason why the Hindus came in this condition, the Hindus who used to be the Vishwaguru once upon a time, and why they reached to a stage that their country is like a slave for 1,000 years. The first and very important reason is the lack of Shakti. पहली चीज हम मांग रहे हैं, हमको शक्ति दीजिए, और ऐसी शक्ति दो कि इस दुनिया में कोई न जीत पाए उसको. कैसा हमारा समाज था. वैदिक, those who read Vedas or the Vedic Richas or Upanishad, जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, क्या वेद मंत्र हैं? बलम देहि, जयम देहि, शक्ति देहि, यही मंत्र हैं. आप दुर्गा सप्तशती पढ़ो, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए. तेजोसि तेजोमहि देहि, मन्युरसि मन्युमहि देहि, सहोसि. पूरे वेद मंत्र सच विक्टोरियस स्पिरिट है. मंत्रों की जो स्पिरिट है, कोई रोना धोना नहीं है वेदों में. वेदों में हमारा जो वेदकालीन समाज है वो इतना विजिगिषु है, इतना विजयशाली है. बस वो ईश्वर से यही मांगता है, हमें शौर्य दो, पराक्रम दो, विजय दो, हम सब दूर जाएं. रणवंतो विश्वमार्यम, वी गो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वी मेक पीपल बेटर. सच ए हायर स्पिरिट समाज जो केवल विजय जानता है. परशुराम, द अवतार ऑफ विष्णु, परशुराम के जीवन में एक श्लोक आता है, अग्रतः चतुरो वेदो, अग्रतः चतुरो वेदा, पृष्ठतः सशरम धनु. ये परशुराम है जो विष्णु के अवतार हैं, और वो बता रहे हैं व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट इज माय रोल. अग्रतः चतुरा वेदः, पृष्ठतः सशरम धनु, पृष्ठतः सशरम धनु, इदं ब्राह्मम इदं क्षात्रम शरादपि शापादपि शरादपि. परशुराम क्या कह रहे हैं, यहाँ 4 वेद हैं ऑन द टिप ऑफ द टंग. जो वेद की भाषा समझते हैं उनके लिए वेद की भाषा है. यहाँ 4 वेद रखे हैं. पृष्ठतः, ऑन द बैक क्या है, सशरम धनु, माय एरोज एंड बो, मेरा धनुष और बाण वो पीछे है. दोनों है साथ में. तो जो ये भाषा समझते हैं उनके लिए ये भाषा है, जो ये भाषा नहीं समझते उनके लिए वो भाषा है. दोनों साथ में है. धर्म की रक्षा करने के लिए शक्ति चाहिए, वरना धर्म की रक्षा कौन करेगा. परशुराम कहते हैं, अग्रतः चतुरो वेदः, पृष्ठतः सशरम धनु, इदं ब्राह्मम, इदं ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शक्ति है. इदं क्षात्रम, यहाँ क्षात्र शक्ति है. शापादपि शरादपि, यहाँ भी शक्ति है, वहां भी शक्ति है. ऐसा विजयशाली हमारा समाज. when we read the stories of the Chola Rajas of the South India who reach up to Cambodia, Indonesia, Java, Sumatra, Bali, Borneo, these all up to Singapore, Malaysia, these all countries, what a victorious journey of the Samaj. क्या great समाज था, शक्तिशाली समाज था. उस समाज की हालत कैसी हुई? For 1,000+ years कंटिन्यूस पिटते ही जा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई थी. और उस समय when the samaj come in this mindset, this condition, how the language change, how the tone change of the samaj. जो समाज बोलता था जयम देहि बलम देहि, ऐसी जिसकी प्रार्थनाएं थी, उस समाज की प्रार्थनाएं कैसी हो गई, हे भगवान हम के ऊपर दया करो, हम पापी हैं, हम दीन दुखी हैं, हम अगोचर हैं, आप सब ठीक करने वाले हो. इस तरह की we sing the आरतीज, many आरतीज with the similar भाव. बस हम ऐसे गिरे हुए हैं, दीन हैं, दुखी हैं, आप ही हमको ठीक करने वाले हो. ये the same समाज जो वो बोलता था, वो समाज ऐसी स्थिति में आ गया है कि शक्ति की कमी. ऐसी स्थिति है कि गिरते गए, पिटते गए, कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति आई थी. द मेन रीजन वाज शक्ति की उपेक्षा. हम संघ में गीत गाते हैं, सुंदर गीत है, शायद कुछ को मालूम हो, हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है. सुंदर गीत है. उस गीत को गीत गंगा पर जाकर के कभी पढ़िए. हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है. वो गीत कहता है, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन. Doesn't matter how great your philosophy is. जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन.
सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। द अनदर स्टेंज ऑफ द गीत, हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने। गीत सेज, हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वो प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की उसी का दंड पाया, यह प्रकृति का ही नियम है अब हमें पहचानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। शक्ति उपासना जरूरी है। और इन द रिसेंट लास्ट 100-200 years तो ऐसा हो गया, वी क्रिएटेड अ फॉल्स नरेटिव ऑफ अहिंसा, a false narrative of ahimsa to justify our cowardness, कि नहीं हम तो अहिंसक हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कैसे फॉल्स नरेटिव क्रिएट करना, वो हमारे समाज ने और किया है। तो वो जोक में बोलते हैं कि एक किसी का झगड़ा हो गया, सो ऑन वन साइड देयर इज गुंडा और इधर टिपिकल अहिंसा का पुजारी। तो उन्होंने, जो गुंडा था, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया, तो ये पूछता है, द फॉल्स अहिंसा पर्सन ये पूछता है, तुमने मुझको जानबूझ के मारा या मजाक में मारा? तो गुंडे को ऐसा लगा कि अच्छा तो उसने कहा जा जानबूझ के मारा, क्या कर लेगा? तो उसने कहा फिर ठीक है, अदरवाइज मेरे को मजाक पसंद नहीं है। ऐसी हमारी समाज की स्थिति थी कि कुछ कर नहीं सकते। एक हिंदी का पोएम है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भुजंग यानी द स्नैक, गरल यानी विष। क्षमा शोभती उस भुजंग को, उसी सांप को क्षमा करने का ये शब्द अच्छा लगता है जिसके पास में विष हो। आपके पास में किसी का कुछ बिगाड़ने की क्षमता है और उसके बाद आप कहते हैं I believe in non-violence, is mean you literally believe in non-violence. आप में कुछ दम नहीं है तो नॉन वायलेंस आपकी मजबूरी है, वो आपकी विशेषता नहीं है, आपका गहना नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ऐसा विजिगीषु समाज, ऐसा विजयशाली समाज कैसे गिरते गिरते ऐसी स्थिति में आया? शक्ति की उपेक्षा करने के कारण हम इस स्थिति में आए। इसलिए पहली चीज हम प्रार्थना में मांग रहे हैं, हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति, हिंदुओं को शक्ति दीजिए। अभी द डेफिनेशन ऑफ शक्ति चेंज इन अकॉर्डिंग टू द टाइम। व्हाट टाइप ऑफ शक्ति वी आस्किंग फॉर? मसल पावर? शक्ति मीन व्हाट? आर वी आस्किंग फॉर मसल पावर? और तो if the society is wrong and if you are in a wrong system, doesn't matter how great your muscles, one person can't do anything, कुछ नहीं कर सकते आप। तो जब हम ये शक्ति मांग रहे हैं तो ये मसल पावर नहीं है, ये क्या है? त्रेतायाम मंत्र शक्ति। There is a श्लोक again. The श्लोक says, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलौ युगे। That explain the definition of शक्ति। और वो कहते हैं ज्ञान शक्ति कृते युगे, इन द सतयुग ज्ञान व शक्ति, that was the definition of शक्ति in the सतयुग। आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि ज्ञान की ही पूजा थी। दूसरा लैंग्वेज, पीपल डोंट नो द अदर लैंग्वेजेस। सो ज्ञान शक्ति कृते युगे। दूसरा क्या है? त्रेतायाम मंत्र शक्ति है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राम, त्रेता युग जहां राम का काल है, उस समय आते आते मंत्र शक्ति वाज द शक्ति। मेनी ऑफ अस वी हैव सीन इन द रामायण, व्हेन दे शूट द एरोज, they pull the arrow, then they do some mantras and then they shoot the arrow. तो मंत्र शक्ति, मंत्रों में शक्ति होती थी। That was the त्रेता युग। द्वापर, ड्यूरिंग द महाभारत, कृष्ण, पांडव, कौरव, द्वापर का समय, द्वापर तक आते आते द्वापरे युद्ध शक्तिश्च, वहां युद्ध शक्ति, जो युद्ध में जीत सकता है बस वो शक्तिशाली है। डेफिनेशन ऑफ शक्ति कंटिन्यूस चेंजिंग एंड राइट नाउ वी आर इन द कलयुग। सो व्हाट इज द
Shakti in the Kali Yuga, the shlok says, Sanghe Shakti Kalo Yuge. इस कलयुग में संगठन ही शक्ति है. Organized society, any society who is organized, they will achieve more. I was प्रचारक in भारत. आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने भारत के गांव देखे हैं, there is no hesitation and fear to say, मैंने देखे ऐसे गांव, उस गांव में 15% population, 10% population Muslims का है. Let's say, because I have seen many, not one or two, many such villages. 10-15% population उनका है, and they dominate the whole village. 15% people, they dominate the whole village. उनका दादागिरी चलता है. Why so? The 15% are organized, and the rest of the 85% are unorganized. Even a 15% organized society can dominate on the rest of the 85% unorganized society. In the Kali Yuga, संगठन is Shakti. अभी muscle power से कुछ नहीं होगा. That's why when in the प्रार्थना we asking, हे भगवान हमें शक्ति दो, हम इस संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं. Make this Hindu समाज so organized that no one can beat it. ये सबके लिए अजय बन जाए, ऐसी शक्ति की हम बात कर रहे हैं. दूसरा गुण मांगते हैं, अजेय आत्म सामर्थ्यम. तुरंत बाद में दूसरा गुण मांगते हैं, सुशीलम लोक पूजितम. सुशील, ग्रेट कैरेक्टर, ग्रेट कैरेक्टर. सुशील, अच्छा कैरेक्टर दीजिए. इज अ बिटर स्टेट ऑफ शक्ति. जहां शक्ति आती है वहां एरोगेंस आता है. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट इट हैपेंस. जिसके पास में पावर आया उसके साथ में अहंकार, घमंड, बाकी चीजें तुरंत आती है. सिकंदर के पास में शक्ति नहीं थी क्या? स्टालिन के पास शक्ति नहीं थी क्या? रावण के पास शक्ति नहीं थी क्या? थी ना. ओनली शक्ति मे बी वेरी डेंजरस. ओनली शक्ति मे बी very dangerous. The moment a person come in the power, that person start thinking, I should be in the power forever. एक बड़ा अच्छा जोक आता है अकबर बीरबल का, कि वो अकबर बीरबल को बोलते हैं कि बीरबल कितना अच्छा हो, एक बार जो राजा बन जाए वो हमेशा राजा बना रहे, कितना अच्छा हो. That is the mindset of this. The moment the power come, उनको लगता है मैं हमेशा मैं ही रहूं, मैं भी मंदिर का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं ही बना रहा हूं, किसी दूसरे को नहीं बनने दूंगा. इट हैपेंस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है. तो वो अकबर पूछते हैं कि कितना अच्छा हो कि एक बार राजा बन जाए वो हमेशा बना रहे. बीरबल ने कहा आइडिया बड़ा अच्छा है, पर ऐसा होता तो आपका नंबर नहीं आता, फिर और कोई बना रहता हमेशा के लिए. तो शक्ति के साथ में प्रॉब्लम है, शक्ति के साथ एरोगेंस आता है. शायद मैंने पहले कहीं बोला है, आप लोगों ने सुना होगा. आई लाइक दैट स्टेटमेंट. समर्थ रामदास राइट्स इन दासबोध. समर्थ रामदास जो शिवाजी के गुरु हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है दासबोध, उसमें एक चैप्टर में when he writes about अहंकार, this arrogance, the ego, he writes a beautiful line, मीठे फल को ही कीड़ा लगता है. He writes, मीठे फल को ही कीड़ा लगता है. कि ये जो अहम नाम की चीज है, जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं उन्हीं को आता है. अरे जिसमें कोई दम नहीं उसको क्या है आएगा. तो ये अहम नाम का जो इंसेक्ट है, ये घूमता रहता है और देखता है हु इज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट पर्सन, और उसके सर में जाके बैठता है. और जैसे फल में कीड़ा लगने के बाद में हम फल को फेंक देते हैं, ऐसे जिस आदमी के दिमाग में अहम आ गया है, लोग, पीपल डोंट लाइक हिम और हर. ऐसे बहुत लोग हैं, मैं करते रहते हैं दिन भर. पीपल डोंट लाइक देम. Doesn't matter, उनको लगता होगा कि मैं बड़ा महान हूं. People literally hate them. People don't like them. पर इसलिए शक्ति मांगने के साथ ही हमने तुरंत मांगा है सुशील, हमको अच्छा चरित्र दीजिए. शक्ति और चरित्र दो चीज मिल गई, वाह, अब क्या चाहिए. शिवाजी महाराज when he was Maratha, in the Maratha साम्राज्य, तो शिवाजी sent a little army to fight with some मुस्लिम सूबेदार. और वो शिवाजी की जो छोटी सी आर्मी थी, उन्होंने उसको, मुस्लिम सूबेदार के पास में भी कोई बहुत ज्यादा आर्मी नहीं थी, तो उनको हराया. और उनको हरा करके
वो जो शिवाजी के जो भी सेनापति थे उस समय के, उस छोटी सी टुकड़ी के, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ही केम इन द कोर्ट, और उन्होंने शिवाजी को कहा खुशखबरी, वो जो मुस्लिम सरदार है उनको हरा दिया है, एंड उसका सारा पैसा, उसका गोल्ड, उसके जो भी हथियार थे, जो आर्म्स वगैरह थे, सब हम ले आए हैं, इवन वेपन्स वगैरह सब लूट करके लाए हैं, और सब अपने आपके यहाँ, ये देखो, एंड द बॉक्सेस एंड बॉक्सेस इज कमिंग इन द कोर्ट, एंड शिवाजी वाज हैप्पी, वाह अच्छा काम किया आपने, आप युद्ध जीत करके आए हो। एंड देन दिस द शिवाजी का ये जो एक छोटा सेनापति है, ये फाइनली बोलता है महाराज एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए भी लाए हैं। तो ये सब तो लाए हैं, एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए भी लाए हैं। शिवाजी को बड़े क्यूरियोसिटी होती है, क्या लाए हो? तो वो जो मुस्लिम सूबेदार है उसकी डॉटर इन लॉ को भी साथ में ले आया है, अ ब्यूटीफुल गर्ल हु वाज डॉटर इन लॉ ऑफ दैट मुस्लिम सूबेदार, उसको भी कि ये शिवाजी महाराज को गिफ्ट करेंगे, महाराज खुश होंगे। तो उस लड़की को, एक 20 साल की लड़की होगी, उसको वो लेकर के वहां कोर्ट में लाया है। एंड द मोमेंट शिवाजी सीन इट, और शिवाजी का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, ही जस्ट स्टूड अप देयर, और उन्होंने उसको अपने सेनापति को ऐसा, he was like in fire, and he said right now I'm in a very different condition, I'm not in a very favorable condition, otherwise मैं अभी आपको मृत्यु दंड दे देता, पर अभी हम ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि मैं आपको अभी मौत की सजा भी नहीं दे सकता हूं, अगर भला चाहते हो अभी इसी समय जाओ और इसको वापस इसके घर पहुंचा करके आओ। हम कौन सी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं? वी आर हियर टू मेक सम चेंज। हम वो जो बाकी तरह के लोगों की तरह लूटपाट करने वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। काहे को हम अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं? अभी जाइए, इसको वापस पहुंचा करके आइए, और उसके साथ में फल फ्रूट गिफ्ट वगैरह लेकर के जाइए। that lady that they said, since many years I'm doing my 5-time namaz and praying to God, praying to Allah, आज तक मैंने खुदा को देखा नहीं था, today I have seen the खुदा in the form of शिवाजी, और उसको वापस दे करके आए हैं। that is सुशील। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए समाज का? कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि वो सीता का हरण तो कर लिया है, सीता का किडनैप किया है, सीता को अशोक वाटिका में रखा है, पर वो सीता रावण को एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड रावण ट्राइंग हिज बेस्ट कि सीता मान जाए, पर वो सीता एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड रावण वांट सीता इन हिज हाउस, बात नहीं बन रही है। तो एक बड़ा मधुर प्रसंग आता है कि कुंभकर्ण से रावण की बात हो रही है, और कुंभकर्ण खूब बोलता है कि यार वो सब कुछ है गया, किडनैप करके लाया, इतना मेहनत की, पर वो सीता मानती नहीं है। तो कुंभकर्ण रावण को सजेस्ट करता है कि अरे तो यू गॉट दिस क्वालिटी, यू कैन चेंज योर रूप, आप तो नए नए रूप धारण कर सकते हो। व्हेन यू कैन हैव अ रूप ऑफ अ सन्यासी टू किडनैप द सीता, व्हाई डोंट यू हैव अ रूप ऑफ राम? सीता में भी कंफ्यूज्ड एंड सीता विल कम विद यू, तो आप राम का रूप धारण कर लो, सीता को ले आओ। आपके पास तो वो क्वालिटी है रूप धारण करने की। रावण आंसर करता है, आई ट्राइड दैट। रावण बोलता है मैंने ट्राई किया, पर जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो सीता को वैसे उस तरीके से पाने की मेरी इच्छा ही खत्म हो जाती है, फिर मैं राम की तरह सोचने लगता हूं, देन वो जो मेरी रावण बुद्धि वो चली जाती है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शील ऑफ राम, कि आप राम का रूप भी धारण करोगे तो भी आपके मन की जो रावण बुद्धि है वो चली जाएगी, वो नहीं रह सकती वहां। शील दीजिए। हम ईश्वर को कह रहे हैं, हमको हे प्रभु, हमको नो वन कैन विन दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ एंड द गुड कैरेक्टर। अच्छा शील हमको दीजिए। और उस शील के साथ में उसका एक एडजेक्टिव लगाया है उसमें प्रार्थना में, सुशीलम। व्हाट सॉर्ट ऑफ सुशीलम? लोक पूजितम, जिसके कारण ये संसार हमारा रेस्पेक्ट करे। लोक पूजितम, दुनिया हमारी पूजा करे, ऐसा शील।
दुनिया हमारा रेस्पेक्ट करे, हमारी पूजा करे, नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर। स्ट्रेंथ के साथ में के सामने सर झुकाना ये तो बहुत आसान है। we see in the society people bow down in the front of politicians, big business people, powerful people. Because I spent so many years in the India, that's why more the Indian examples I can relate to. MLA, MP, प्रधान जी, बिजनेसमैन, कलेक्टर, एसपी, उनके सामने ऐसे झुकते हैं। दैट इज पावर के सामने झुकना। उसी रोड पर जहां ये सब लोग आ रहे हैं, उसी रोड पर एक सन्यासी आता है, लोग झुकते नहीं हैं, पांव में गिर जाते हैं। अपने बच्चे को उस सन्यासी के पास देने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कलेक्टर, एसपी, एमपी, एमएलए तो कुछ दे भी सकता है, सन्यासी के पास में क्या है देने को? नथिंग। जिसने खुद सब कुछ छोड़ दिया वो क्या देगा? पर अपने बच्चे को भी उनके पांव में डाल देते हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए। दैट इज सुशीलम लोक पूजितम। दुनिया हमारा रेस्पेक्ट हमारे कैरेक्टर के कारण करे। हम पावरफुल बन गए हैं, हमारी गवर्नमेंट आ गई है, इसलिए लोग हमारा सम्मान करेंगे, ऐसी हमको कल्पना नहीं है, ऐसी कल्पना नहीं है। हमारे कैरेक्टर के कारण। सो अजेय आत्म सामर्थ्यम सुशीलम लोक पूजितम। दो चीजें मांगी, तीसरी चीज मांग रहे हैं, means somehow I see they are interconnected. They are interconnected. So why in the prarthana we asking these five? They are very psychological process of Hindu Samaj. हमको शक्ति चाहिए, हमें शील है, अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, अभी हमको ज्ञान। तीसरी चीज क्या मांग रहे हैं? ज्ञानम च देहि विश्वेश। हे विश्वेश, ओ विश्व के ईश, ओ द ईश ऑफ होल विश्व, हमको क्या दीजिए? ज्ञानम, ज्ञान दीजिए। क्योंकि अब कैसे बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा, अभी इन सब के लिए ज्ञान चाहिए। पहले शक्ति, शील और अभी ज्ञान। अभी आगे बढ़ना है, ज्ञान दीजिए। अभी ज्ञान क्या है? ज्ञान गूगल पे नहीं मिलता। There is no English translation of ज्ञान in English. Nearby words we can search for, but exact wording, there are many Sanskrit words. There is no translation in the English. Srimad Bhagavad Gita says, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसी पवित्र चीज दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा पवित्र ज्ञान है। ज्ञान के ही निकट का एक शब्द है विद्या। विद्या का डेफिनेशन आता है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे, जो आपको लिबरेट कर दे। ये दो पैसा कमाने की कला, ये ज्ञान विद्या नहीं है। वो तो कहीं से भी वो कहीं से भी सीख सकते हैं। ज्ञान और विद्या वो नहीं है कि जो हमको नौकरी करने की या दो पैसा कमाने की कोई क्षमता दे। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान वो है जो हमको, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, ये मनुष्य जन्म है, इस जन्म में करना क्या है, दिस बेसिक क्वेश्चंस जो हमको आंसर करते हैं कि व्हाई आई लिविंग। किसी को पूछा क्यों आप जिंदा हो, तो उसने कहा मर नहीं रहे, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। तो ये कोई रीजन नहीं है कि क्यों हम जीवित हैं, क्यों इस संसार में हैं, क्या करना है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर ज्ञान देता है, और ये गूगल पे नहीं मिलते। ये तो इंफॉर्मेशंस गूगल पे मिल जाएगी, इंफॉर्मेशंस आर नॉट ज्ञान। हमें ज्ञान दीजिए, ओ विश्वेश, हमको ज्ञान दीजिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ ज्ञान? ज्ञानम च देहि विश्वेश। व्हाट सॉर्ट ऑफ? द नेक्स्ट लाइन इज ध्येय मार्ग प्रकाशकम। कैसा ज्ञान? जो हमारे इस ध्येय मार्ग को प्रकाशित करे, उस पर प्रकाश रहे, तो हमको दिखता रहे अभी इधर जाना है। वी नो दिस ध्येय मार्ग इज नॉट इजी, इज डिफिकल्ट। ये संघ का काम करना आसान नहीं है, समाज का काम करना आसान नहीं है, डेफिनेटली इजी नहीं है। इसलिए यहाँ कार्यवाह बनाने के लिए झगड़ा करना पड़ता है, और कोई बनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आसान नहीं है ना। बाकी जगह प्रेसिडेंट बनने के लिए झगड़ा होगा, संघ में कभी नहीं होता है। संघ में सब बोलते हैं उसको बना दो कार्यवाह, मेरे को फ्री कर दो।
क्योंकि इस काम में बहुत कुछ देना पड़ता है, ये काम आसान नहीं है। Thousands of स्वयंसेवक एंड सेविका वी हैव सीन, जिन्होंने बोला था हम जीवन भर काम करेंगे, नहीं कर पाए। आसान नहीं है, लाइफ लॉन्ग काम करना इज नॉट इजी। परंतु हम ईश्वर को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे मार्ग को आसान कर दो, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हमको मालूम है ये कठिन काम है, कठिन रहने वाला है। आप थोड़ा सा इसको प्रकाशकम, थोड़ा लाइट डालिए इसके ऊपर, ताकि हमको दिखता रहे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि किधर किधर जाना है। बस बाकी काम हम कर लेंगे। अभी शक्ति है, चरित्र है, थोड़ा ज्ञान दीजिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई नॉट टू डू। हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्ञानम च देहि विश्वेश ध्येय मार्ग प्रकाशकम। ये आसान नहीं है काम। संघ के काम में समस्या बहुत आती है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा साल काम करके रुक जाते हैं। अगर इतना ही बढ़िया स्वीट काम होता तो लाइफ लॉन्ग कर रहे होते सब लोग। इट्स नॉट इजी। बाहर की समस्या भी आती है, अंदर की समस्या भी आती है। Those who you know the conditions of Kerala. In the demography of Kerala, Hindus are less than 50%, and then highly influenced by the leftist communist people. Those literally believe in the killing culture. केरल में hundreds स्वयंसेवकों का मर्डर हुआ है। मर्डर केवल इसलिए कि वो शाखा में जाते हैं। There is, मतलब कैन यू बिलीव, कहीं कहीं चलो स्वयंसेवक होने के कारण या सेविका होने के कारण कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं, यहाँ तो जीवन समाप्त हो रहा है। और 1 2 4 नहीं, hundreds मर्डर हुआ है, पर स्वयंसेवक काम करते हैं। एंड टुडे इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ शाखास इन केरल। कैन यू बिलीव, कौन सी परिस्थितियों में काम करते हैं वो लोग, कि बाहर की समस्याएं हैं। Sometimes the circumstances are not very favorable for you outside. I deeply remember an incident which was around 20 years back. कुछ लोगों को मालूम होगा, in the northeast of India 4 स्वयंसेवकों का किडनैप हुआ था। जिन लोगों को मालूम हो, around 20 years back, the Christian leftist terrorist group in there was a Abhyas work was going on, a little shivir of a weekend shivir. Around 50 swamsevak were there, and रात को terrorist attack हुआ. The terrorists came and they kidnapped 4 of our कार्यकर्ता। 4 कार्यकर्ताओं को किडनैप किया। एक थे क्षेत्र कार्यवाह 70-year-old क्षेत्र कार्यवाह ऑफ होल नॉर्थ ईस्ट, उनको किडनैप किया। विभाग शारीरिक प्रमुख 35-year-old विभाग शारीरिक प्रमुख, मैरिड पर्सन, लिटिल चिल्ड्रन इन द हाउस, दे वर देयर फॉर द प्रवास, कि चलो वीकेंड का प्रवास करके आते हैं। विभाग प्रचारक एंड जिला प्रचारक, 4 लोगों को किडनैप करके ले गए और they took in the Bangladesh. So even the government of India couldn't find. For 1.5 year to 2 year bargaining was there, and they were asking for money. See, this is the difference between Sangha and the rest of the 1,000 organizations, and we have proud on that. बार्गेनिंग चलती रही, इसके बदले इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए, 50 करोड़ 100 करोड़। स्थिति ऐसी थी कि संघ अपने कार्यकर्ताओं के लिए पैसा देगा क्या? तो जीवन भर हमने जितनी बातें की है, आज वो बातें दांव पे लगी हुई है। We have seen incident before that when the daughter of India's home minister got kidnapped. मुफ्ती मोहम्मद सईद was the home minister of India. उनकी डॉटर को, रूबिया सईद को किडनैप किया था, और अपनी डॉटर को छुड़वाने के लिए उस समय जिंदगी भर बड़ी बड़ी बातें की, पर जब अपनी बेटी को छुड़वाने की बात आई तो उस समय उन्होंने टेररिस्ट छोड़े थे। मेरे को मेरी बेटी वापस चाहिए, भले ये टेररिस्ट छोड़ो तो मैं उनको छोड़ने को तैयार हूं। वो टेररिस्ट बाद में जिनको मारेंगे, अरे वो भी किसी के बच्चे हैं, पर ऐसा उन्होंने किया था।
we do remember the incident when the flight of India Airlines was got hijacked and it was took to Kandahar, and the 3-day 72-hour drama, or pure I because I have seen that whole incidents on the TV, पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया था, हमको हमारे लोग चाहिए at any cost, at any cost we need our people back. And the central ministers, they took the terrorists with them in the flight to get back our people. ऐसे इंसिडेंट बहुत देखे थे, और आज संघ को परीक्षा आई है कि आपके 4 कार्यकर्ताओं को किडनैप किया है, and they asking money, and what to do? संघ ने कहा ये हम नहीं करेंगे, ये बार्गेनिंग हम नहीं करेंगे, आज तो हमारी तपस्या ही दांव पे लगी हुई है. It was one of the most unfortunate incident of the Sangha history of 95 years. After 2 years, one day we got the message, they all 4 कार्यकर्ता got killed. उनका डेड बॉडी भी कभी नहीं मिला. उन्होंने टेररिस्ट लोगों ने उनको बांग्लादेश में ही कहीं मार दिया, और उनके भी पत्नी बच्चे थे. आई थिंक वन स्टेप अहेड. संघ को तो छोड़ो, वो जो 4 लोग थे उनमें से किसी के फैमिली मेंबर ने भी ये नहीं कहा वी नीड अवर पीपल एट एनी कॉस्ट. दैट इज संघ भाव, दैट इज संघ भाव. ये जो ना ज्ञानम च देहि विश्वेश, कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अरे हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, क्या प्रॉब्लम है हमको, कुछ नहीं है. ऐसे संघ, हिस्ट्री ऑफ संघ इज फुल विद दैट टाइप ऑफ hundreds and thousands of incidents कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, स्वयं सेवक सेविका झुकते नहीं है. नहीं, ये धर्म कार्य है, इसमें झुकना नहीं है. Then what the point we talking about Ram and Krishna and Shivaji and Pratap, and what's the point? और जब हमारे ऊपर आती है सब भूल जाते हैं. So there's no point. ज्ञानम च देहि विश्वेश. बाहर की समस्या भी आती है, अंदर की समस्या भी आती है. So literally, because this is very practical point with us. तो अंदर की समस्या कैसे आती है? I remember one कार्यवा, just before it was in Bharat, तालुका कार्यवा, तहसील कार्यवा, before the संघ शिक्षा वर्ग, he went on प्रवास. अभी संघ शिक्षा वर्ग आ रहा है तो सब गांवों में जाना है, सारे स्वयंसेवकों को बोलना है, संघ शिक्षा वर्ग करना है. एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग प्रवास, एक गांव में दूसरी गांव में सबको जाके बोलना संघ शिक्षा वर्ग है आफ्टर 2 weeks एंड यू शुड कम. एंड ये आएंगे, फिर कोई बोलता है अरे मेरा वो थोड़ा एग्जाम, अरे क्या एग्जाम है, बाद में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेना, चलो आना है संघ शिक्षा वर्ग में, ये सबका आना है. किसी ने बोला अरे मेरा वो थोड़ा शादी वादी है, अरे क्या शादी, तुम्हारे बिना शादी नहीं होगी क्या? और he is explaining everyone, just we need to be in the संघ शिक्षा वर्ग. After finishing the whole प्रवास, he back to home and next day थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे कि कौन कौन सा अपना क्या हाफ पैंट ले जाना है, ड्रेस ले जानी है, गणवेश ले जानी है. तो पत्नी ने देखा क्या कर रहे हो, अरे व्हाट यू डूइंग? तो उन्होंने कहा कि वो संघ शिक्षा वर्ग नेक्स्ट वीक. संघ शिक्षा वर्ग, ये तुम्हारा जिंदगी भर संघ शिक्षा वर्ग ही चलता रहेगा, और तुम ये संघ शिक्षा वर्ग में जाओ, मेरे को तो छोड़ ही दो तुम. और वो पत्नी का रूप देखा और उन्होंने कहा अच्छा चल नहीं जाऊंगा बस. तो सारी दुनिया को समझाया, पर वहां समझाना मुश्किल काम है. एंड मैं देख रहा हूँ बहुत सारे संशय को अपना सर हिला रहे हैं, सो दे कैन रिलेट कि ये संघ के काम में तो बाहर की समस्या तो छोड़ो, बाहर की समस्या से निपटना तो आसान है, कि वो टेररिस्ट से निपटना आसान है, पर ये घर में निपटना मुश्किल है कई बार. और कई बार तो मैं सेविकाओं को देखता हूँ बहुत अच्छा काम करती है, एंड दे गॉट मैरिड इन सम फैमिली, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस संघ समिति. तो बहुत इच्छा है काम करने की, कर नहीं पाते हैं. तो ये अंदर, ये जो अंदर की समस्या है ना, ये बड़ी कॉमन समस्या है, और इससे निपटना तो और भी मुश्किल काम है. उसमें ज्ञान चाहिए, फिर वही उस समय काम आता है. तो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि बम्बल बी, भौरा होता है, बड़ी हनी बी, बम्बल बी, या इफ यू अंडरस्टैंड. सो दैट वो भौरा, भ्रमर जिसको संस्कृत में कहते हैं, कमल के ऊपर, लोटस के ऊपर बैठ करके वो हनी पी रहा है, या, और इतनी देर में उसको हनी पीते पीते, वो पराग वहां से लेते लेते वो भूल गया कि इतनी देर में सनसेट हो गया और वो कमल बंद हो गया. राइट?
अब वो भ्रमर, वो बम्बल बी इज इनसाइड, और ऊपर से वो कमल कोश बंद हो गया है, लोटस बंद हो गया, अभी वो निकल नहीं सकता है। भ्रमर कैन होल इन द वुड, उसके दांत इतने तीखे होते हैं कि वो वुड को होल कर सकता है, पर अभी वो भ्रमर वुड को होल कर सकता है पर कमल को होल नहीं कर सकता, क्योंकि कमल की कोमलता उसको उसको होल नहीं करने देती है। तो वो बम्बल भी अंदर बैठ करके सोचता है। एक ब्यूटीफुल श्लोक है उसका, रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्मति कोश गते द्विरैफै, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारा। This श्लोक is near to the explanation of the death. वो अंदर बैठ करके बम्बल भी सोच रहा है, भ्रमर वो भंवरा सोच रहा है, रात्रि ही गमिष्यति, ये रात जाएगी, this night will go, भविष्यति सुप्रभातम, the morning will come, the sun will rise, भास्वानुदिश्यति, the sun will rise, भास्कर will rise, हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज, this lotus will smile, will laugh, and it will open, and then I will fly. इत्थम विचिन्मति, ऐसा सोच रहा है, इत्थम विचिन्मति, सोच रहा है, कोश गते, inside this lotus, द्विरेफे, that भंवरा, that bumblebee, ऐसा सोच रहा है, अलास, हा हंत हंत नलनिम गज उज्जहारा, एक हाथी उधर से आया, एक एलिफेंट आया, that uprooted the lotus, वो ले गया साथ में। तो श्लोक है मृत्यु के बारे में कि आदमी कितनी प्लान करता रहता है, एक मिनट में एक एलिफेंट आता है, उसको लोटस को लेके चला जाता है, अभी आप सोचते रहो अंदर ही, अभी वो कभी रात्रि गमिष्यति होने वाला नहीं है। बट द पॉइंट इज, जो भंवरा लकड़ी को छेद कर सकता है, वुड को भी होल कर सकता है, वो उस कमल को होल नहीं कर पाता है, क्योंकि लकड़ी को होल करना मुश्किल है, बाहर की समस्याओं से लड़ना आसान है, पर ये कॉमन समस्याओं से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। एक अच्छा हिंदी में फ्रेज है कि वो आग से बच करके आ जाते हैं और धुएं में मर जाते हैं बाद में। तो आग से लड़ना आसान है, पर वो तो धुएं में मर जाते हैं बाद में, धुएं से घुट करके। तो ये संघ कार्य में ज्ञान चाहिए, अजय शक्ति है, शील है, पर आगे बढ़ने के लिए, जीवन भर आगे बढ़ना है तो ज्ञान चाहिए। हे प्रभु, हमको वैसा ज्ञान दे जो हमेशा डूज एंड डोंट्स क्या है हम उसमें आगे जा सके, क्या करना है क्या नहीं करना है हम निर्णय कर सकें। जीवन में जब श्रेयस और प्रेयस आता है तो हम श्रेयस की ओर जा सकें। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, क्या करना क्या नहीं करना हम निर्णय कर सकें, ताकि हम जीवन भर इस दिशा में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना में जो 5 चीजें हम मांगते हैं, आज हमने 3 के बारे में डिस्कस किया। Rest of the 2 we will discuss on the next week, on next Friday. I stop here. We have 7 minutes in hand, 6 minutes in hand. If we have some questions, we can have.